Hello, good morning. Can you hear me? Yes. Yes, sir. Okay. So, not wasting time, we'll start with the first lecture of electrostats, where I'll be doing some basic questions. I hope you all must have watched some videos at least, so you all must have having the idea of electrostatics. ठीक है, शुरू करते हैं. There are some questions which I have taken as introductory level, and then okay, after 3 lectures I'll be doing the main questions of electrostats of NEET and JEE, which will be a mixture of both the things which are there. First question which you all can see is attraction a true test of electrification. So electrification means okay, charged. So he's telling you that is attraction a true test of electrification means to test that whether two bodies are charged or not. We'll take an example. You have seen comb being rubbed on a blanket. Pay attention to me. There's a comb which is being rubbed on a blanket. So the comb is rubbed on a blanket. What happens to the comb? Okay, the comb will acquire some charge. Let the charge be negative. Correct? Yes or no? Now, if I bring this comb near to pieces of paper, so this was negatively charged. Paper is which charged? Paper is neutral. Neutral means what, beta? Has both positive and negative charges. Yeah. It has both positive and negative charges inside. But what will happen when the comb comes near to it? Polarization. The paper process of induction will take place. What does the process of induction mean? Electrostatic induction means what? That in a paper, the positive charges will come on one side and the negative charges will be repelled on the other side. Okay, this process is called as what, beta? This whole process is called as what, beta? क्या बोलते हैं इसको? Induction. And because of this, the paper and the comb will get what, sir? क्या हो जाएगा? हाँ, paper and the comb will get attracted. There will be a force of attraction between them. You can see. ये ऐसे खींचा चला जाएगा इसकी तरफ. तो अभी ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. इज अट्रैक्शन अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि दोनों बॉडीज को चार्ज होना चाहिए. तो यहां पर तो हमने क्या देखा कि पेपर वाज अनचार्ज्ड, पेपर वाज न्यूट्रल एंड द कोम्ब वाज चार्ज्ड. बराबर है? तो हमने टेस्ट किया दोनों को, हमने देखा कि दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट उसमें से पेपर वाज न्यूट्रल, पेपर वाज नॉट एनी चार्ज्ड. Therefore, I can prove that attraction is not a true test of electrification. Okay, because one body was neutral and the other body was with charge but are negatively charged. Electrification means both the bodies have to be charged. Okay, getting it what's happening? Okay, अच्छा, second question की तरफ आता है, उसी का inverse है. Is repulsion a sure test of electrification? Yes. Suppose two bodies are positively charged. Yes, they will repel. Okay, or two bodies are negatively charged, then also they will repel.
What sir? Repel. So यहाँ पर both the bodies have to be charged. This should also be charged. Similarly, this should also be charged. And electrification का मतलब होगा यहाँ पर both the bodies have to be charged. जैसे आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, आपने स्कूल में मैग्नेटिज्म पढ़ा है, एवरीवन, यस, वैसे ही सपोज एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, will it attract iron filings? Yes or no? Hello. Yes, sir. So can I make a statement that attraction is the sure test of magnetism or magnetization? ऐसे नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि दोनों मैग्नेट होना चाहिए. एंड व्हाट इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन? हेलो. Repulsion. रिपल्शन. भाई अट्रैक्शन तो इधर हो रहा है ना, ये मैग्नेट थोड़ी है, ये तो आयन फाइलिंग्स है. सर पर दूसरे मैग्नेट को उल्टा करके फिर अट्रैक्शन भी तो होगा ही ना. Sure test. नहीं, श्योर टेस्ट की बात कर रहा है, ट्रू टेस्ट. Yeah, we need a true test, no? ओके, गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. अट्रैक्शन तो होगा ही, मना नहीं कर रहा हूं, बट हमको टेस्टिंग किससे करना है? हमको रेफरेंस किसको लेना है बेटा? हमको रेफरेंस लेना है किसको? रिपल्शन को. So the test should come 100% true always, na? So we need to take a condition which That is only true हम always. which is true always. Yes, surest टेस्ट कह रहे हैं ना, ट्रू टेस्ट. Yeah. Yes. जैसे लिटमस टेस्ट होता है, वैसे यहाँ पर ट्रू टेस्ट होता है कि जो हर कंडीशन में कामयाब हो जाए. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. Yes. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन कि भाई आंसर हमेशा इसका रिपल्शन आएगा. आपको मैग्नेटिज्म भी पढ़ाया जाएगा, उसमें श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो रिपल्शन. ओके, क्योंकि अट्रैक्ट तो कोई भी जनरल बॉडी हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट सर? इंडक्शन. अभी हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं बेटा. वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा व्हाट आर मेथड्स ऑफ चार्जिंग. मेथड्स ऑफ चार्जिंग फटाफट थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन वील गो आगे. There are three methods of charging. One is conduction. Second is friction. And third is the most important, that is what sir? Induction. Induction. ये हमारे बहुत काम की चीज है. कंडक्शन और फ्रिक्शन हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते. सपोज कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब सपोज एक बॉडी है, वैसे रखा है, ओके. यहाँ पर हमने एक रॉड लाया which is negatively charged and we touch this body. तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसमिट हो जाएंगे. Getting it what's happening? This process is called as what बेटा? कंडक्शन. क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन. मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज अगर मैंने दिया तो नेगेटिव चार्जेस टच करने पर कंडक्शन के कारण ट्रांसफर हो जाएगी. फ्रिक्शन तो हमने पढ़ा ही है. फ्रिक्शन हमने कहा एग्जांपल लिया है. वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द कोम एंड द पेपर. फर्स्ट यू हैव टू रब द कोम, यस और नो? हेलो. और सपोज दिस इज ह्यूमन हेयर and you're combing your hair. When you comb your hair, क्या होता है? Some electrons are being ripped off from the hair and will come to the comb, and the hair will acquire which charge? Positive charge. And the comb will acquire which charge beta? Negative. Negative charge. अच्छा, positive charge means what? Positive charge means what? What does positive charge mean? सबको मालूम होना चाहिए यार. ये इसको क्या बोलता है? Loss of electrons. And negative charge means what? Gain of electrons. Asha, look at the hair. When your hair is losing electrons, does it lose mass?
मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नीट वालों के लिए। क्या नीट वाले हैं मेरे साथ? हेलो। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। डज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस लॉस ऑफ मास? प्लीज आंसर। No, sir. नो। व्हाई डू यू थिंक सो बेटा? Mass of electron is negligible. नेग्लिजिबल। हाउ मच इट इज? 9.1 into 10 raised to minus 31. kg। बराबर है। ये कितने इलेक्ट्रॉन की बात है? 1 इलेक्ट्रॉन की बात है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। बट आपको पता है कि जब आप कोम करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एक साथ में? हजारों, लाखों? यस और नो? हेलो बेटा, are you all understanding what's happening? So the mass which is coming out will become n times of n, where n will become suppose 10 raised to 5 electrons. Yes or no? So ये क्या हो जाएगा? 9.1 into 10 raised to, I'm just taking an example of 10 raised to 5 है, इसने इतना electrons, so some negligible amount of mass is lost, but practically technically speaking mass तो lose हुआ ना बेटा? हेलो, technically speaking are you losing mass or not? Yes. Yeah. Okay, because physics में हम लोग छोटी से छोटी चीजों और बड़ी से बड़ी चीजों की भी बात करते हैं ना बेटा। we talk about an atom also, similarly we talk about gravitation also. तो ऐसे नहीं कि इस चीज को neglect कर दिया जाए। whenever there is loss of electrons there is loss of mass. Yes sir, it is happening, it is a correct statement. Got it? ये question पहले आ चुका है। इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज एक रॉड है नेगेटिवली चार्ज्ड, देयर इज अ रॉड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड यू bring it near to an uncharged conductor. Uncharged मतलब क्या? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर। तो इसके नजदीक कौन से चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव। एंड इसके दूर कौन से चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव। बराबर है। अब क्या करते हैं इंडक्शन में? मेरी बात सुनो बेटा। अब यहाँ पर इस हिस्से को है ना अर्थ कर देते हैं। अर्थिंग से क्या होता है? Positive charges will come to neutralize the negative charges. हाँ, मतलब यहाँ से ये जो चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, उसको देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्जेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्जेस। सो ये नेगेटिव चार्जेस जीरो, बिकॉज अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है बेटा? जीरो। तो यहाँ पर दिस बॉडी व्हिच इज अर्थ, ये ऐसे अर्थ हो गया। नेगेटिव चार्जेस तो चले गए, तो यहाँ पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे बेटा? सो दिस इज हाउ अ बॉडी बिकम्स विथ चार्ज्ड, positively charged by the phenomena of what beta? Electrostatic Induction. induction. ये आगे भी जाके हम लोग कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे, बट दिस phenomena induction हमको याद रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। और ये आपके नोट्स में डीसी पांडे में और आपको जो नोट्स दिया गया है नीट वालों को, उसमें सब कुछ है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। A phonograph plate is there, attracts dust particles just after it is cleaned. Cleaned मतलब कौन सा फिनोमेना हुआ पीछे के तीनों में से? Friction. फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया? सपोज इट बिकम्स व्हाट सर? सपोज इट बिकम्स विथ चार्ज। Positive. भाई ये प्लेट है ना, फोनोग्राफ प्लेट है। ओके उसको सपोज मैंने क्लीन किया, तो इसके ऊपर कौन से चार्जेस आ गए? पॉजिटिव चार्जेस आ गए। पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या कह रहा है कि इट विल अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल्स। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आर व्हाट? डस्ट पार्टिकल्स जो साइड में है, दे आर बोलो बोलो सही है, दे आर नेगेटिवली नो Neutral. न्यूट्रल। दे आर न्यूट्रल। या न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव साथ में है। बट ये क्या करेगा? कौन सा फिनोमेना करेगा अभी डस्ट पार्टिकल्स के साथ? डस्ट Induction. पार्टिकल इंडक्शन करेगा। वेरी गुड बेटा। तो इंडक्शन करेगा। इंडक्शन मतलब नेगेटिव नजदीक आ जाएगा, पॉजिटिव दूर भाग जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
और इस नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण ये खींचा चला जाएगा। हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो फिनोमिना तो वही है, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। हमको देखना है कि कौन सा फिट हो रहा है, एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू फिट दैट कैटेगरी, आई थिंक सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम्स of an electron in 3 grams mole of hydrogen? ओके, कितना मोल है बेटा? 3 मोल। सही है, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये फॉर्मूला मालूम है आपको? कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। हेलो, केमिस्ट्री में Yes, sir. यार मेरे साथ में रहो। हेलो एवरीवन, ओके। N is 3 into what is Avogadro's number? 6.02 into 10 to the power 23. वेरी गुड बेटा, ये n मिल गया। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नाम सुना है आपने? The Yes, sir. total charge present will become Any. integral multiple of E। भाई इतना तो वीडियो सब लोग ने देखा ही रहेगा ना। कैपिटल एन ही है, कैपिटल एन ही है। कैपिटल एन तो पता ही है, 3 into 6.02 into 10 raised to 23 into electron charge is 1.6 into 10 raised to minus 19। This answer will come in what बेटा? coulombs। और अगर आपको माइनस साइन लगाना है तो आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना बेटा। हेलो, Yes, sir. so this is how you do it। It's very very basic questions जो आपको एक लेवल तक लेकर जाएगा। तो वीडियोस में तो मैंने थोड़ा अच्छी खासी बात की थी। चलो, we'll come to next question। This is based on कूलम्स लॉ। अच्छा चलो, कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा। प्लीज बी विथ मी। व्हाट इज कूलम्स लॉ? फॉर्मूला? यस सर, एनीवन? देयर आर टू which charges? Point charges separated by what distance? Fine. R। suppose this also repels him, इसको बोलेंगे F12 एंड इसको क्या बोलेंगे? F21 बार बार। force acting on 1 due to 2 and force acting on 2 due to 1। yes or no? राजवीर म्यूट। ओके, लिसन नाउ। ये चीज ठीक है। अब कूलम्स लॉ का जरा फॉर्मूला बताइए। हेलो, 1/4 pi epsilon k q1 q2 upon r2. नॉट के q1 q2 by r square। this is magnitude format of which law? Coulombs. कूलम्स लॉ। मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज वेक्टर फॉर्मेट ऑफ दिस थिंग? सपोज मैं वेक्टर फॉर्मेट की बात करूं F21 बार की, तो आपको तो पता है कि वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, एंड दैट यूनिट वेक्टर शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, बिकॉज F21 का डायरेक्शन इस तरफ है ना। एंड कैन आई ड्रॉ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2? हेलो, तो वेक्टर Yes, इज sir. मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? F21 बार इज 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 by r square into r12। क्या बेटा? हेलो, आई ऑल विद मी? Yes. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एम आई टेलिंग यू नाउ? क्या मैं इसको, अच्छा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? Vector upon magnitude. सब कुछ आना चाहिए, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। So can I write this as F21 bar is 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 by r square vector, unit vector is vector upon magnitude। magnitude तो आ रही है ना,
मैग्नीट्यूड ऑफ r12 क्या है? r है ना, वेक्टर का, यूनिट Yes, sir. वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, the vector, the main vector. So can I write the main formula as, this is very important, f21 bar is 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 by r cube into r12 vector. Yes, sir. ये important है. Similarly, how will you write f12 bar? q1 q2 by r cube into R21 bar. r21 bar. Are you all with me? Hello, are you all understanding? Yes, sir. ये थोड़ी चीजें हमको ध्यान में रखनी है ताकि हमको पूरे क्लैरिटी आ जाए. अच्छा, व्हाट इज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? 9 into 10 raised to 9. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. अच्छा, व्हाट इज के स्टैंड फॉर? Dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के का वैल्यू इज 1 फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम and greater than 1 for any medium, and it is infinity for a metal. Hello, are you all getting it? बेटा ये डिस्कशन ज्यादातर आपको आना चाहिए था, मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? Yes, हेलो. sir. चलो शुरू Sir, करते हैं फटाफट. हाँ बेटा. यस. sir, one second. In the previous question before this, it is saying that the total charge in coulombs of 3 moles of hydrogen. So we know the charge of 1 mole of electrons is 96,500 coulombs. So then 3 moles will be 3 Faraday करके we can do direct multiplication and You get. can do, but that information you should learn. मतलब सबको याद नहीं है ना, सबको याद नहीं है ना. हेलो. Yes, sir. Okay, so ये जनरल मेथड्स है, we are doing it. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके, these are all introductory level questions. आपको 3 लेक्चर बाद अच्छे खासे लेवल पे सम्स कराए जाएंगे, ठीक है ना, which will be a mixture of NEET and JEE. The mass of an electron is 9.1 into 10 to minus 31 and that of proton is 1.6 into 10 to minus 27. Find the ratio of electrostatic force and gravitational force. चलो electrostatic force का फॉर्मूला बताओ फटाफट. 1/4 by epsilon naught के q1 q2 by r square. अच्छा, what is 1/4 by epsilon naught? q1 कितना है? 9.1. नहीं, q1 कितना है? q1 रॉन्ग है, मैंने q1 कितना है? चार्ज कितना है दोनों का? अरे भाई, दोनों का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 point into 10 raised to minus 19. स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज q1 q2 का चार्ज सेम है, अपॉन r स्क्वायर. लेट द r स्क्वायर बी r स्क्वायर ओनली. दिस इज व्हिच फोर्स बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. इक्वेशन नंबर 1. अच्छा चलो, इसके रिलेटेड ही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ. चलो फटाफट. कैन यू टेल मी व्हाट इज g का फॉर्मूला? g is 6.67 into 10 to minus 11. m1 कितना है? 9.1 into 10 raised to minus 31 into 1.67 into 10 raised to minus 27 upon r square. अरे भाई, are you all with me? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को क्या कर देना है? दोनों को क्या कर देना है भाई? क्या पूछा है? दोनों को डिवाइड कर देना है. Yes or no? So Fe by Fg, when you divide approximately, the answer will come 10 raised to 39. 10 raised to 39. What is this? याद है हमने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ा था, कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. Yes, sir. अगर 5 के ऊपर है तो n+1 कर देना है, अगर 5 के नीचे है तो 10 raised to n होता है, याद है? Yes, sir. तो वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, निग्लेक्टिंग द नंबर.
अगर नंबर 5 के नीचे है या 5 है तो उसको नंबर 5 के नीचे है तो उसको निग्लेक्ट कर देना है, और अगर नंबर 5 के ऊपर है तो 10⁻n+1 हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.854 into 10 10 raised to minus 12 12 यूनिट कूलम coulomb स्क्वायर square per Newton meter न्यूटन मीटर square. स्क्वायर। अच्छा, कूलम मतलब चार्ज है ना? हेलो, Yes, चार्ज sir. इज बेटा IT स्क्वायर। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। M1, क्या भाई सही है ना? M1 L क्या होगा? न्यूटन इज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, and meter square will become L2. I hope this will become I2 T2 M1 L3 T-2। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? M-1 L-3 T4 I2। हेलो, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। यार कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है? तो एक्चुअली ये लेवल से ही स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है, तो ये कुछ लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। 3 point charges Q are placed at vertices of an equilateral triangle. Find the magnitude of electric force on the other. Same sum हमने याद है ग्रेविटेशन में भी किया है। ग्रेविटेशन। ये बड़ा म्यूट, ये Q Q एंड Q बराबर है। अच्छा, वेरी गुड। लेट द साइड बी ए। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स फाइंड करता है, तो इसके कारण देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स F। व्हाट इज F का फॉर्मूला? KQ square by E. वेरी गुड। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K पकड़ लेते हैं, KQ स्क्वायर बाय A। यस और नो? Yes. यस सर। अच्छा, ऐसे भी आएगा, ये भी फोर्स आएगा इसके कारण F। ये भी वैल्यू कितना रहेगा? KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम? 60. 60। आपको पता ही है, रिजल्टेंट जब 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है? √3. Root Yeah. 3 F. 3F। You know how to do it, right? कोई बड़ी Yes, बात तो है sir. नहीं। This will become √3F. So can I say the resultant force will be √3 times of F, which is √3 times of K. K is 1/4 by epsilon naught Q square by A square. Okay, so this is simple. तो ये चीज हमने ग्रेविटेशन में प्रैक्टिस की है। आपको है ना बेटा 60% ग्रेविटेशन सेम मिलेगा, बाकी जो दूसरी चीज है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो ग्रेविटेशन, इससे डरने की जरूरत नहीं है जरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। 3 point charges are placed at the vertices of a square। बेटा ध्यान देना, so this is plus Q, this is plus Q, and this is plus Q. Okay, what is the magnitude of the force when a point charge of minus Q is placed at the center? तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बेटा? माइनस Q लगा दिया। चलो शुरू होते हैं। ये वाला जो प्लस Q है, ये वाला 1 वाला 2 वाला एंड 3 वाला, ठीक है? ये 1 वाला अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? Attract. अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा अलोंग द सेम लाइन। तो ये ऐसे बोलेगा भाई मेरी तरफ आ जाओ, विद द फोर्स F। अच्छा, सेकंड वाला भी Attract. अट्रैक्ट, और ये थर्ड वाला भी अट्रैक्ट, बट ये फोर्स ने ये फोर्स को मार दिया। यस और नो? तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स 1। अच्छा, फोर्स क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स टुवर्ड्स 1 का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट K को K पकड़ता है, Q Q Q Q, दैट इज Q स्क्वायर बराबर Yes, आई sir. बाय आधो डायगोनल स्क्वायर। हाफ डायगोनल है ना डिस्टेंस। व्हाट Yes, इज sir. व्हाट इज सपोज साइड A है तो डायगोनल रहेगा √2A। √2A का हाफ क्या होता है? A A by by √2. √2 का स्क्वायर। यस और नो सर? हेलो, यू ऑल कैन डू इट। Yes. अगर ये ग्रेविटेशन होता तो हम लगाते Gm1 m2 by r स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
So can you go back to the last slide for a second? Yeah. Finished? Yes, sir. Okay. ध्यान देना. 9th question. Coulomb's law states that electric force becomes weaker with increasing distance. Suppose that instead of electric force between the two charged particles was independent of distance. मतलब क्या बोलेगा ये? That force का फॉर्मूला क्या रहेगा? K Q1 Q2. ये बोल रहा है R नहीं है. Hello. Yes, sir. Suppose you take a hypothetical state where he is telling you that it is independent of distance. The force depends only on K Q1 Q2, na? In Yes, this sir. case, would a neutral insulator still be attracted towards the comb? ये comb है. आपको मालूम है यहाँ पर कौन से चार्जेस आते हैं? Negative. नेगेटिव. पेपर है. अट्रैक्शन होता कब है? अट्रैक्शन कब कैसे होता है बेटा? इंडक्शन के कारण होता है. यहाँ पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नजदीक Plus. प्लस, और यहाँ पर कौन से चार्जेस भाग जाएंगे? Minus. ओके. अच्छा, एक्चुअली अट्रैक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ. कैन आई से पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस का डिस्टेंस छोटा है कि बड़ा है? दिस डिस्टेंस लेट इट बी r1 एंड नेगेटिव से नेगेटिव चार्जेस का डिस्टेंस पकड़ लो r2. आई ऑल गेटिंग इट बेटा? Yes, sir. Yes. किसका डिस्टेंस कम है, r1 के r2? R1. R1. तो एक्चुअली हुज फोर्स इज डोमिनेंट, पॉजिटिव के नेगेटिव का? अरे भाई ये Positive. R1 sir, ये positive. इसको पीछे का ना, लेट इट बी f1 एंड ये तो उसको दूर भगाएगा बिकॉज ये नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, तो ये इसको बोलेगा गेट आउट. बट आई नो फोर्स इज इनवर्स टू r स्क्वायर, इनवर्स To स्क्वायर R लॉ ना. square, yes sir. तो जिसका r बड़ा रहेगा उसका फोर्स छोटा रहेगा, सो नेट फोर्स क्या बनेगा? हेलो. That's why it gets what sir? Attracted. मगर कह रहा है कि फोर्स में r है ही नहीं अभी. Since फोर्स में r नहीं है, that means what? That means what? F1 and F2 will become Equal. Equal. तो क्या अट्रैक्शन होगा? ओके. तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. 0. So there will be no attraction. Did you understand what's happening? Did you understand this question? एकदम conceptual question था. हेलो. Yes, sir. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A metal sphere is suspended by a nylon thread. Initially, the metal sphere is uncharged. When a positively charged glass rod is brought close to the metal sphere, the sphere, draws towards the rod. But if the sphere touches the rod, it suddenly flies away. Explain why this happens. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक sphere है, which is hanging by a nylon thread. The metal sphere is uncharged. Uncharged मतलब क्या? Positive and negative साथ में. Hello. When a positively charged glass rod is brought near it. बराबर. ये पहला केस. मैं आपको बताऊंगा नहीं आंसर, आप मुझे बताना. सेकंड केस में क्या हो रहा है? Positively charged glass rod is touching it. फर्स्ट केस में कौन सा फेनोमेना हो रहा है? इंडक्शन के कंडक्शन? इंडक्शन. वेरी गुड. इंडक्शन में क्या होगा बेटा? इंडक्शन में कौन से चार्जेस नजदीक आ जाएंगे? Negative. नेगेटिव नजदीक आ गया, दूर ये भाग गया, तो अट्रैक्ट होगा ना बेटा ये. हेलो. Yes, यस sir. और नो? अच्छा, ये पॉजिटिव है. ये कौन सा फेनोमेना है सेकंड केस में? Conduction. कंडक्शन में क्या होगा? कौन से चार्जेस अंदर बह जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे? पॉजिटिव. बेटा पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाएगा ना इधर. तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल व्हाट विल दे डू? Repel. दे विल Repel. repel. वही फिनोमेना कह रहा है, बार बार वही फिनोमेना दे आर टेलिंग यू. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग.
कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन है जो हमने वीडियोस में नहीं किए। वीडियोस में हमने ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड किए ना भाई, आप लोग ने देखा है ना वीडियो, यस और नो सर? Yes, sir. So concepts we are clearing over here. Okay, more conceptual questions we'll be doing it over here. And उधर तो हमने numerical based questions तो कर लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। Sir, can you go back हाँ, one? या Yeah, okay, sir. I took a screenshot. Thank you. ठीक। Is there any lower limit to electric force between two charged particles at a certain distance? सबसे minimum, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला बताओ फटाफट, फोर्स का फॉर्मूला फटाफट बताओ। A Q1 Q2 by R square. अच्छा Q का कोई मिनिमम वैल्यू है क्या? Q का कोई मिनिमम वैल्यू है दुनिया में? सबसे Q सबसे कम से कम कौन सा है? अरे यही तो है। So Hello? charge of the electrons. Charge of an electron. We are not talking about quarks, up quark and down quark and, पता है ना आपको तो शायद। हेलो? हाँ सर। Yes, sir. We are not talking about that because अपने लिए elementary charge Q ही है, that is charge of an electron. So what is the lower limit? F will be 1/4 by epsilon naught, that is K, Q square by R square, but Q is what? E. So what is the lower limit? What is the minimum force between two elementary charges? K, E square by R square. Hello? Are you all getting it? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब ये लोअर लिमिट है हमारा, इसके ऊपर जो भी होगा वो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। Does the force on a charge due to another charge depend on the charges present nearby? Suppose ये Q1 है, ये Q2 है, ये इसको repel कर रहा है। Let the force be F21. Can anyone tell me what will be the formula for F21? Let the distance be R1. बताओ फटाफट फटाफट, come on. K Q1 Q2 by R1 square. Suppose अभी यहां से है ना Q3 आ गया, ये डिस्टेंस ले लो R2 ले लो, ये इसको रिपेल करेगा। अच्छा क्या इसके कारण क्या F21 बदल गया? क्या इसमें कोई चेंज आया? यस और नो? ये अपना फोर्स जनरेट करेगा ना, ये अपना फोर्स कितना जनरेट करेगा? F23, दैट इज 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 Q3 by R2 स्क्वायर। बट क्या इसके कारण ये चेंज हुआ? नहीं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? डज द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज affect the charges, depend on the charges present nearby? No. F21 is independent of F23. F21 is independent of F23. Similarly, F23 is also independent of F21. Okay, are you all understanding? तो फोर्स दूसरे के प्रेजेंट से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ग्रेविटेशन में दूसरा मास से एक जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q1, सो F12 कितना है? 4I minus 3J Newton. What is F21? Can anyone reply? You know that action reaction pair का relation क्या है? F12 bar is minus of F21 bar. अरे यार सबको पता है? हाँ सर, बट The force exerted by the table on the book is equal and opposite of the force exerted by the book on the table. They form an action reaction pair. They will never cancel each other because they are acting on two different bodies. Do you know this phenomena which I have explained n number of times? Yes, sir. इसका फोर्स कितना हो जाएगा? It will become, माइनस साइन लगा दो, -4I plus 3J cap Newton. Hello? Yes. Yes, sir. अच्छा, वन मोर थिंग विच आई नीड टू टेल यू ऑल कि भाई मैंने डाउट सॉल्विंग एक असिस्टेंट फुल टाइम रख लिया है। ओके, जनरली वो हाई लेवल के डाउट सॉल्व नहीं कर पाएगा आपके। हाई लेवल के डाउट्स आई विल ओनली बी सॉल्विंग,
मगर जो बेसिक लेवल के डाउट्स है, जैसे आपके HSC के न्यूमेरिकल के डाउट्स है या नीट लेवल के डाउट्स है या जेई मेन लेवल के डाउट्स है, तो आप लोग वो रोज 4 hours he is there on Zoom. Any दिक्कत, any doubt you have, I'll share the Zoom link today. You all can contact him, you all can sit with him एकदम शांति से and you all can clear all your doubts. कोई भी theory में doubt हो, कुछ भी हो, 11th standard 12th standard, आप उसके साथ में बैठ के solve कर सकते हो. Similarly, I have given you video lectures also. आप घर पे बैठ के video lectures या तो देख सकते हैं and clear your doubts. Are you all understanding what's happening? तो बेटा जितना हमारे से हो रहा है, we are doing it. बाकी आपके हाथ में है. Question number 14. The electric field of a point charge is uniform. एक point charge है. क्या इसका electric field uniform है? Uniform का मतलब क्या होता है? You must have studied uniform electric field. Uniform electric field means the direction and the magnitude of electric field is what, sir? C. Constant. अच्छा, what do you mean by non-uniform electric field? ऐसे. Hello. Yes, sir. Field is not constant. Why not constant? Because the direction and the magnitude keeps on changing. Where there is crowd, the electric field is strong. Where there are loosely packed, electric field is weak. Acha, how is the electric field near a positively charged? Can I say it is radially outwards? अरे lines of force के statements पढ़ा है कि नहीं? It is like the rays coming out from the sun. Yes or no? Is it uniform or non-uniform? चलो बताओ. अरे बोलो. Is it uniform, non-uniform? Uniform. कैसे यूनिफॉर्म बेटा? ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है. क्राउडिंग भी चेंज हो रहा है. यू कैन सी दिस स्पेसिंग. ये स्पेसिंग एक है, ये स्पेसिंग बढ़ गया. देखो Non-uniform, so since it's radially outwards, no? एक मिनट. It is yes, tell me. It is Non-uniform. non-uniform. इसको एक्चुअली बोलते हैं रेडियल. Actually it is called as radial field. Yes, sir, since it's radially outwards, that way. पॉइंट चार्ज के नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड where the spacing will decide the strength Force on it, yeah. the strength of the field. Yes. क्या मेरे साथ में हो? हेलो एवरीवन. ओके चलो इधर आ जाओ 15 पे. इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इज एवरीवन. कितने लोग हैं यहाँ पर मुझे देखना है. 43 पीपल आर देयर. पूरे 43 लोगों को समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? हेलो यार, कुछ तो कोई तो रिप्लाई. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन ऑन द फिगर दिख रहा है आप लोग को. स्टेट वेदर वेदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा है? So in the text also it's written electric potential only. ठीक है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं अपने आप बता दूंगा आपको. ओके आप मुझे बताइए कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए का कि बी का? A, sir. Why परी बेटा? why? So crowding, sir. Crowding is more. So can I say electric field at A is greater than electric field at B? Because यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है. ओके यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है. यहाँ पे वही क्राउडिंग, अगर मैं वही स्क्वायर सर्कल बनाऊं, यहाँ पर सर्कल इतना ही आएगा ना, तो यहाँ पर अंदर कितने लाइंस आ रहे हैं? 1 and 2 and 3 ओनली. एंड यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 लाइंस आर कमिंग इन द सर्कल. हेलो. अच्छा पोटेंशियल, आर्यन मुझसे कह रहा है कि पोटेंशियल के बारे में बात करो. बेटा लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम विच पोटेंशियल एंड गो टुवर्ड्स विच चार्ज? आर्यन. So high to low, sir. हाँ तो लाइंस ऑफ फोर्स गो फॉर स्टार्ट फ्रॉम विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. ए कौन सा पोटेंशियल रहेगा? एरो की तरफ देखो आप. ए कौन सा पोटेंशियल रहेगा? हाई रहेगा. यस और नो बेटा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो ये कोई सवाल ही नहीं होता है एक्चुअली. ऑब्वियसली पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Yes, sir. ये कोई सवाल नहीं बनेगा. एक्चुअल सवाल ये है. हेलो. Yes.
Yes. और okay, if you know the basic things and the video lectures, you will enjoy आगे जाके, बहुत मजा आएगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, ये सब बहुत अच्छे चैप्टर्स है. क्वेश्चन नंबर 16 अब, चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी ये स्टेटमेंट बराबर से ध्यान सुनना. सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, बोलो बोलो सही, आप अभी कह रहे थे ना, हाई पोटेंशियल टू Low potential. हाई टू लो. सपोज एक पॉजिटिव, अच्छा हाई को मैं प्लस डिनोट कर सकता हूँ एंड लो को मैं माइनस डिनोट कर सकता हूँ. सपोज देयर इज अ प्लस चार्ज केप्ट ओवर हियर. ये प्लस चार्ज किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा? Minus. माइनस की तरफ. मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. And if you know the force acting on a charge in an electric field is F is equal to QE. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello. So can I say if a positive charge is there and it is placed in an electric field, it will experience a force in the direction of the field? Yes, sir. Yes, sir. और अगर एक नेगेटिवली चार्ज इधर रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? Opposite to direction of Opposite, field. sir. Opposite to the direction of the field. Hello, are you all understanding? अब मैं Yes, थोड़े sir. और अच्छे लेवल की बात करता हूँ. कैन एनीवन टेल मी, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ मैं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ हिम? एक्सेलरेशन QE So by F M. by M. QE by M. F is ma, so Yes, acceleration sir. will become F by m. Yes, sir. F is QE by m. सर A तो मिल गया, A मिल गया तो मजा आ गया. कैन आई से A कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अरे A कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैन आई अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशन नाउ? आपको पूछेगा टाइम t बाद इसका वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो कैन आई अप्लाई 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? v is equal to u plus U plus 80. मैं आपसे कहूँ यस और नो, 2 मीटर बाद उसका स्पीड कितना था? कैन आई This is अप्लाई UT plus half AT square. हाँ, u square plus 2. हाँ, आप कैन आई अप्लाई ऐसे ut plus half at square also. बट यहाँ पर a क्या रहेगा? ऑलवेज रिमेंबर a विल बिकम QE by m. खत्म. जैसे अगर हम फ्री फॉल करते थे तो हम a का वैल्यू g पकड़ते थे. हेलो, अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हेलो. Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये चीज तो सब समझ गई हमको, ये चीज तो हमको समझ गई. मैं थोड़े अच्छे लेवल की बात करता हूँ. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ओके, मैंने यहां से एक चार्ज को ऐसे फेंका, ओके, क्यू को फेंका विद द वेलोसिटी v नॉट या v, यू पकड़ता है. गेटिंग इट? इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. व्हिच पाथ विल इट फॉलो? Projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन. कैन यू इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटी हो? हेलो. Yes, sir. तो इट इज गोना फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली. अरे बोलो. अच्छा कोई बता सकता है इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin theta by J. भाई जी नहीं लिखना है, जी की जगह क्या लिखना है? QE by M. हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? अच्छा रेंज का फॉर्मूला क्या रहेगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी. जी की जगह a लिखता है ना. h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2a जी नहीं a ना. a is QE by m. yes or no? Yes, sir. यही चीज है. सिर्फ ग्रेविटी रिप्लेस किसको कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव था, ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव था, तो रिलेशंस विल आल्सो बी द सेम. आपको टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, खाली एक ही जगह QE by m रिप्लेस कर देना है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज सेम एज द फील्ड लाइन. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स?
भाई लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. हेलो, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, याद है? सपोज यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बुक्स में ऐसे बने हुए रहते हैं ना. हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ऐसे ही बने हुए रहते हैं. सपोज यहां पर आई कीप अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज जो बड़ा वाला है, ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा. बोलेगा गेट आउट, गेट आउट. अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको Attract. अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट करेगा. बाय पैरेललोग्राम लॉ द रिजल्टेंट will come in this direction. So can I say the resultant comes tangential to the lines of force? Hello? Yes, sir. यार बात समझ में नहीं आई आप लोग को. Hello? Did you understand? Yes, sir. Resultant comes along the lines of force. Therefore, lines of force is the path followed by the positive charge. वही रास्ता वो तय करेगा पूरे रास्ते. सपोज ये चार्ज इधर आ गया, तो ये इसको क्या करेगा? ये इसको गेट आउट. ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. यस और नो? दोनों का सपोज रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर के. हेलो? यस और नो? दिस इज हाउ वी प्लॉट द लाइंस ऑफ फोर्स. यार स्कूल में आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बनाए रहेंगे आयन फाइलिंग से. हेलो? कंपास नीडल से. यार बनाए कि नहीं स्कूल में? मैग्नेट, दो मैग्नेट लेकर यू मेक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन देम, आयन फाइलिंग्स या कंपास को. तो दैट इज द सेम थिंग व्हिच आई एम मेकिंग इट ओवर हियर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. हाँ. So what will be the answer over here? Yeah, it is true. But they are saying that trajectory same as the field line. So are they considering direction or no? What direction are you speaking about? The The trajectory is positive the, to negative, like that they are considering. No, suppose there is a charge particle. He is trying to tell you that this charge particle, when it is left from a positive charge, it will cover this path and go towards negative charge. इसी को कहते हैं trajectory. So and what about negative charge if it's there? The negative charge will come towards positive charge. Now, what is the problem in that thing? But we have taken our reference as what? Unit positive charge, Unit ना? positive charge, yes sir. तो आप लैंग्वेज के टर्म्स में बात करो. ओके, ठीक है, चलो. So the trajectory will be the same as the lines of force. Figure shows some of the electric lines of force due to 3-point charges Q1, Q2 and Q3. हाँ. I checked behind, they've written false. No. The trajectory of the charge particle is same as the field line. Yes, it is correct. It is 100% So they are correct. not considering direction, like positive to negative like that. No. भाई In the यहाँ से question अगर I'm आप asking. यहाँ से अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को लीव करेंगे तो हाँ, इट इज तो गोना फॉलो वो दिस. फॉलो करेगा. हाँ. यहाँ से आप ऐसे लीव करेंगे तो इट इज गोना फॉलो दिस पाथ. Yeah. Okay. So that I understood. I'm talking about negative charge. That will go in the opposite direction, and that's why. Yes, obviously it will go in the opposite direction. So that's why I'm asking this direction is considered or no. Trajectory is independent of direction. Trajectory का मतलब ही No, नहीं है. direction of positive to negative. मतलब field का direction they are considering over here or not. That's why I'm asking. No. They are just considering that the path followed will be same as that of the field line. Yes. Yes. Okay. Yes. Question number 18. Figure shows some of the electric field lines Q1, Q2 and Q3. अच्छा, lines of force start from which charge and end towards which charge? Hello? ये ऐसे तो कोई बता सकता है Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. Q1 पॉजिटिव है क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग आउट. Q2 क्या है? Q2 Negative. Negative. Q3 पॉजिटिव बिकॉज लाइंस निकल रहे हैं. देखो फिर से. हेलो?
Yes or no? Are you all getting it? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. So these are concept clarity वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है. अच्छा, इसको करने से पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको? सपोज वी टेक अ पॉइंट चार्ज. What is electric intensity defined as? Force experienced by a unit positive charge. याद है ना? Hello. Yes. Electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge when placed on an electric field of another charge. अच्छा, इसका डेरिवेशन कैसे है? एक पॉइंट चार्ज है, बड़ो Q. It will generate an electric field surrounding it. Suppose at a distance of छोटो r, there is another test charge. ये टेस्ट चार्ज और ये बड़ा Q जो है, इस बड़े Q का नाम क्या है बेटा? याद है? सोर्स चार्ज. यानी इस छोटे Q नॉट का नाम क्या है? Test. टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? Repel. रिपेल करेगा. Yes or no? Can I say what will be the formula for the force? Yes or no? Hello. Yes, sir. What is electric field का general formula? F by Q naught. So can I say Q naught में से F cancel हो जाएगा, तो what will be the formula for E? 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Q by R square. Q by R square. And always remember the direction. It is away from the positive charge and towards the negative charge. Yes or no? Away from the, ये बहुत important है यार, बहुत ज्यादा important है. We are dealing only for which body over here? Hello, we are dealing with which body? Point charge. बहुत सारी चीज करना बाकी आपने जैसे ग्रेविटेशन में किया ना, याद है ना? स्फीयर यार, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, ये सब चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे. Yes. दैट इज द थर्ड लेक्चर. उसके बाद में हम लोग मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे. ओके, ये चीज पे बात करते हैं. अभी फिलहाल हम लोग इस चीज पे बात करते हैं. इसको थोड़ा पक्का कर लेते हैं. 1/4 pi epsilon naught Q by R square and the direction will be away from the positive charge. Away from the positive charge मतलब I am talking about the source charge, huh? Away from the source charge and towards the source charge अगर होगा negative charge तो. Yes or no? Yes, sir. चलो आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है. 4 particles having charge Q are placed at the vertices of a pentagon. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Everyone be with me. हाँ बेटा, ऐसे. हेलो. क्या हो रहा है? 4 charges are placed. Q, Q, Q and Q. The distance of each corner from the center is A. ये सेंटर है और सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है? कितना है? ये दिया. A. Find the electric field at the center of the pentagon. मुझे एक बात बताओ, इस Q के कारण electric field will be towards or away at the center? Away. Away. Along the same line. Sujal, are you there? Yes, sir. क्या फॉर्मूला है E का? ये E का फॉर्मूला क्या रहेगा यार? K Q by A square. A square. अरे K is 1/4 by epsilon naught. हाँ, अरे बोलो. अच्छा, दूसरा वाला जो Q है उसके कारण किधर रहेगा? चलो Away. फटाफट बताओ. आउटवर्ड. तीसरे वाले Q के कारण Away.
आउटवर्ड अलोंग द सेम लाइन, ऐसे ऐसे कुछ इस वाली क्यू के कारण। हेलो, Downward. डाउनवर्ड। हेलो, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक क्यों नहीं है, यहाँ पर नहीं है। Now, always remember one thing. Do you know, इसको मैं स्टॉप करता हूँ थोड़ा, अभी हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। Do you know बेटा Polygon law of vectors? Yes, sir. What is Polygon law telling? That if n number of vectors are there, suppose there is one f1 bar, an f2 bar, then f3 bar, then f4 bar, what will be the resultant? So from the start of the first one to the tip, to the end of the last one. ये resultant Yes, sir. सही है क्या? Hmm. अच्छा, अगर मैं resultant का डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो? So it will Minus complete R bar. the, नहीं वो ठीक है, it तो will इफेक्ट complete the Polygon law. So no. सो कंप्लीट पॉलीगन हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। Yes, sir. Net Yes, force sir. 0. अगर मैं आर बार का डायरेक्शन उल्टा कर दूं, इसका मतलब सबको कैंसिल हो चुका, ये आर बार ने सबको कैंसिल कर दिया। Yes, sir. Yes. अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि दिस आर बार इज द रिजल्टेंट ऑफ f1 बार, f2 बार, f3 बार, f4 बार। मगर आर बार को अगर मैं ऐसे कर दूं, मतलब आपने जैसे कहा ना माइनस आर बार, कैन आई से Yeah. दिस वन आर बार इज द इफेक्ट ऑफ f1, f2, f3, f4। Yes. Yes, sir. एंड अगर आपने माइनस कर दिया मतलब सबको उड़ा दिया साथ में, where I can write that this r bar is the effect of f1 bar, f2 bar, f3 bar, f4 bar. Hello, are you all understanding? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर क्लोज पॉलीगन मतलब कितना एंगल बनाएगा? प्लेन एंगल कितना बनाएगा? 360। हेलो, क्लोज पॉलीगन मतलब कितना एंगल बनाने वाला है? 360 बनाएगा कि नहीं? हेलो, Yes, sir. जैसे अगर ये हुआ f1, f2, f3, f4, तो 360 बनाया ना, हर मोड़ पर 90 90 90 90 बनाया। अरे यार बोलो ना, ऐसे मत करो तुम लोग यार। Yes, sir. ओके, तो अगर 5 हुए तो, अगर 5 वेक्टर हुए तो, अरे तो 360/5 ना। Yeah. 360/5. अगर 3 हुए तो 360/3। 360/3. 3. अच्छा, यहाँ पर कितने हैं इस डायग्राम में? कितने हैं? 5. 5 है। 5 है कि 4 है? 4. 4, sir. 4 है बेटा। मतलब एक वेक्टर सपोज ऐसे बना, द हेड ऑफ द फर्स्ट, टेल ऑफ द सेकंड, दूसरा ऐसे बना। हेलो, बना कि नहीं? Yes, sir. तीसरा बार, अच्छा ये कितना एंगल रहेगा? हेलो, 108 degrees, sir. नो 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 नो, अभी मेरी बात सुनना। पांचवा मुझे चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए 5 टू कंप्लीट द पॉलीगन। हेलो, Yes, sir. होना चाहिए 5, तो इट विल बिकम 360/5। कैन आई से हाँ, थर्ड विल हाँ. बी हियर, फोर्थ विल बी हियर, कैन आई से द फिफ्थ विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल, Yes, sir. So 72 degrees, sir. and the fifth will be same as that of any one of them। अगर ये E है, ये E है, ये E है, ये E है, तो ये भी तो E होना चाहिए, but it should be in the opposite direction of the polygon ना। हेलो, Yes, sir. मतलब अगर ये F था तो ये भी F था, तो ये भी F था, तो ये भी तो F है। हेलो, Yes, sir. मैग्नीट्यूड इसका F है, इसका भी F है, इसका भी F है, इसका भी F ही होना चाहिए, बट इसका डायरेक्शन पॉलीगन से उल्टा होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. कैन आई से इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा, ओके, वो E ही आएगा। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर E? KQ²/A², and it will be in the opposite direction of the polygon. Hello, Yes. are you all getting it? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता है।
A charge of -2 microcoulombs is placed at the origin. Find the electric field at 3,4,0. अब मेरी बात सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट समय है. Everyone just be with me please. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? हेलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? अभी किया हमने. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला is K square by A square. हाँ बोलो सही है. E will become KQ by A square. AQ by R square. But can I say परी बेटा this is a vector, मतलब यहाँ पर एक वेक्टर भी आए, यूनिट वेक्टर. हेलो. अच्छा, can I write unit vector as vector upon Magnitude. Is this fine? Is this fine? Yes, sir. एक मिनट, अभी मेरी बात सुनना प्लीज मेरी बात सुनना. शुरू करते हैं हम लोग. क्वेश्चन कहता है a point charge -2q is placed at the origin. origin पर कौन है? -2 microcoulomb. Find the electric field at 3,4. 3,4,0 है ना, 3,4 यहाँ पर रहेगा. हेलो, यस और नो? Yes. अच्छा, ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? बोलो ना भैया. नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पर ही कैसे आएगा? टुवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज? Towards. मतलब ये डायरेक्शन में आएगा. यस और नो? इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. बट इट शुड बी अ वेक्टर फॉर्मेट. इट शुड नॉट बी अ स्केलर फॉर्मेट. इट शुड बी अ वेक्टर फॉर्मेट. नाउ पे अटेंशन. दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0 and this coordinates of this point is 3,4. सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं. आर्यन बेटा, टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ ई. ई का मैग्नीट्यूड के कितना है? 9 into 10 raised to 9. क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू कितना है? -2. माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है. माइनस साइन के कारण मैंने डायरेक्शन नहीं लिया. मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि माइनस साइन आपको नहीं लेना है. हेलो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन लेना है. पूरे चैप्टर में सब लोग ध्यान रखे. माइनस साइन नहीं लेना है. माइनस साइन कब लेना है? सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में लेना है. आई ऑल हियरिंग मी एवरीवन प्लीज? अच्छा, व्हाट इज आर बिटवीन देम? आर कितना है? 3,4 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना है? 5 स्क्वायर. ये तो मिल गया. कितना आएगा? 18 इंटू, इसका यूनिट पता है ना, न्यूटन पर कूलम. हेलो. बट ये कौन सा फॉर्मेट है बेटा? ये क्या है? स्केलर सर. ये स्केलर फॉर्मेट है. मगर आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इट इज विच क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, कुछ लोग ऐसे करेंगे बट आपको आंसर ऐसे नहीं मिलेगा. ओके, दिस फॉर्मेट ओवर हियर इज नॉट वैलिड. इट इज अ स्केलर फॉर्मेट. एंड जानबूझ करके आई एम डूइंग द स्केलर फॉर्मेट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये स्केलर फॉर्मेट करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज आंसर विल बी गिवन इन वेक्टर फॉर्मेट. आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बेटा? अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्मेट करते हैं. वेक्टर फॉर्मेट के लिए मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ. सब लोग इधर मेरी बात सुनना. सपोज देयर इज अ चार्ज +q placed over here. This is initial point. And मुझे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. लेट दिस बी फाइनल पॉइंट. मुझे क्या निकालना है? इधर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? अवे और टुवर्ड्स? अवे. चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर क्यूब. पीछे परी. हेलो. आर क्यूब इंटू आर बार. अच्छा, आर बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. आर बार विल बी आर फाइनल बार माइनस आर इनिशियल बार. इट विल बी
इसका कोऑर्डिनेट फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस Initial point माइनस का इनिशियल coordinate. पॉइंट का कोऑर्डिनेट। हेलो, क्या मेरे साथ में हो आप लोग? यस और नो? अब Yes. हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे है? हमारा क्वेश्चन ओरिजिन पर है। कौन सा पार्टिकल ओरिजिन पर है? Sir, -2 माइक्रोकूलम, microcoulomb. बराबर है। अच्छा, ये 3,4 पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये 0,0 है। यस और नो? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है सबको मालूम हो गया? ये डिस्टेंस कितना है? अभी आर्यन ने बताया था, कितना है बेटा? 5 है। 5, sir. डायरेक्शन क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर? But Away or towards the charge. हाँ, ऐसे। नाउ ऑलवेज, अच्छा चलो फॉर्मूला बताओ। E is KQ by R cube, R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर। उधर ध्यान से, K कितना है? Q Sir, कितना 2 है? into 10 raised to हाँ, -6. 2 -2 नहीं लेना है। Yes, sir. R क्यूब 5 क्यूब। हेलो 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 हेलो, Yes. अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। राजवीर बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर कौन सा है? एरो की तरफ देखो, एरो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? एरो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा। हेलो हेलो, कैन आई से यार, कोई Final बताएगा? is origin, sir. फाइनल इज ओरिजिन, फाइनल इज Origin. ओरिजिन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एरो जिस तरफ है ना, एरो बेटा ये फाइनल है और ये कौन है? इनिशियली। ये सब पॉइंट्स नोट करना, कोई भी बुक्स में नहीं दिया रहेगा, आपको फिर दिक्कत होगी। तो फाइनल कोऑर्डिनेट एरो की तरफ कौन है? 0,0। कैन आई राइट दिस एज 0 i कैप प्लस 0 j कैप? हेलो, Yes, sir. माइनस 3 i कैप प्लस 4 j कैप। क्या हो रहा है भैया? यस और नो? अच्छा, अगर ये +2 माइक्रोकूलम होता तो? अगर ये +2 माइक्रोकूलम होता Sir, तो? then away, sir. हाँ, then away. Final would हाँ, be final would be 3,4. 3,4. I hope you all have understood this concept. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो एक लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या मजा, ठीक है ना बेटा? यस और नो सर? ओके, और एक सेक्शन पे आता हूं मैं, हम लोग और एक सेक्शन थोड़ा कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो करेंगे। आई होप एवरीवन इज विद मी, राइट? और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है भाई, वीडियो प्लीज देख लीजिए। 3 people have dropped, I don't know why. ठीक है, फिर बाद में they will complain I don't know electrostats. A point charge Q1 1 microcoulomb is held at the origin. A second charge -2 microcoulomb and mass 10 raised to -4 kg is held along the x-axis 1 meter away from the origin. The second point charge is released from rest. What is the speed when it is at the origin? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस? यार ऐसे मत करो यार। हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस? के Q1 Q2 by R ना? हेलो, Yes, जैसे sir. 2 मासेस थे ना, M1 M2, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -G M1 M2 by R। हेलो, अरे Yes, sir. यार ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, K Q1 Q2 by R। ऑलवेज रिमेंबर, Q1 and Q2 are substituted with क्या? With sign. And energy is which quantity बेटा? स्केलर है क्या वेक्टर है? Scalar. स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। क्या समझ आ रहा है बात? हेलो, Yes, sir. ओके। तो ये बात है पोटेंशियल एनर्जी। चलो इधर शुरू करते हैं। अभी कह रहे हैं Q1 is held stationary, मतलब ये फिक्स्ड है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0 पर।
A second charge Q is placed where? चलो हेल्प करो यार फटाफट. Q2 कहाँ पर है? कहाँ पर है Q2? 1 meter from the origin on the x-axis. Placed at a point A. Okay. इसका चार्ज तो पता है वो सब वैल्यूज है. सेकंड चार्ज इज मूव टू पॉइंट बी. इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पर है? इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए. ओके. Sir, we were doing 21, no? Sorry. Q1 is here at the origin. A second point charge -2 and mass this much is placed 1 meter On the x-axis, so 1,0. It is 1,0. It is released from rest. Second charge को मैंने rest से release कर दिया, मतलब इसका U0 था और उसको छोड़ दिया. कह रहा है इसका स्पीड जब वो 0.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन है तो कितना रहेगा? व्हेन इट इज एट 0.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब उसने ये डिस्टेंस भी 0.5 मीटर ही कवर किया ना. कह रहा है जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर Q2 पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना रहेगा? हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हेलो. Yes, sir. कैन आई कंसीडर दिस? So mass is of what, sir? They have given some mass. I'll give it. एक मिनट रुको, पहले हम लोग थोड़ा वो कर लेते हैं, बाद में हम लोग देखते हैं मास किस लिए. Okay, sir. Yes or no? Yes, sir. Can I say this is which point? Final point. हेलो भाई, Q2 को छोड़ दिया हमने. Q2 का इनिशियल पोजीशन 1,0 था. Q2 का फाइनल पोजीशन रहेगा 0.5,0. 0.5,0. Yes, sir. 1,0. 0.5,0. क्या मेरे साथ में हो? हेलो. हाँ sir. अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको, जाने दो. आप एक मास को एक टावर से छोड़ देते हो. हेलो, यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम योर बिल्डिंग एट द टेरेस एंड यू लीव समथिंग. ओके, यस और नो? मैं आपसे कहूंगा कि 2 मीटर बाद उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एकदम सिंपल बात कर रहा हूं मैं. आप टेरेस पे हाँ, v square is equal to u square plus 2gh. बट एक्चुअली ये फॉर्मूला आया किधर से? ये जो v square is equal to u square plus 2ah जो था, वो आया किधर से? You are correct, very much correct. ये एक्चुअली एक काइनेमेटिकल इक्वेशन जो बनाया गया है वो इजी फॉर्मूला है. बट एक्चुअल वेयर इट कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम क्या यार, बोलो ना. Sir, change in potential energy is हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ रहा है. भाई दुनिया में हर चीज जो है, हर चीज वो कंजर्वेशन का नतीजा है. हेलो. Yes, sir. कितने टाइप के कंजर्वेशन हमने पढ़े हैं? जरा फटाफट बताओ यार. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दुनिया का हर चीज आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो बेटा. हमारे लिए थोड़ा आसान फॉर्मूला साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया, पर उनके पास तो कोई फॉर्मूला नहीं था. तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया? फिर उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ही सॉल्व किया पूरा चीज. हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? और आपको पता है कि ग्रेविटेशन चैप्टर में भी हर मोड़ पर मैंने क्या लगाया था? अरे प्लीज, एवरी सेकंड एनर्जी. तो ये चैप्टर भी वही है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. चलो शुरू करते हैं. कैन आई से टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. KE plus PE initial is KE plus PE final. What is KE initial? 0. अरे इनिशियल पे तो छोड़ा गया है ना. Yes or no? हेलो परी, are you there? Yes, sir. चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ बेटा. K Q1 Q2 by R. R इनिशियल कितना है? ओरिजिन और R इनिशियल में कितना है डिस्टेंस है? 1. हेलो. 1. Initial point is 1,0 and from the origin the distance will always be 1. अच्छा, KE final will become half mv square. आर्यन आपको समझ में आया m किस लिए दिया था? Yes, sir. Understood, sir. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या रहेगा आर्यन? Q1 Q2 by half square. 0.5. हाफ स्क्वायर नहीं, हाफ. हाँ, sorry. स्क्वायर नहीं करना. अच्छा, Q1 and Q2 have to be substituted with
साइन। 9 sir. अच्छा k का वैल्यू कितना, चलो मैं सब्स्टिट्यूट करके भी बताता हूँ आपको। k का वैल्यू कितना रहेगा 9 × 10⁻⁹। q1 कितना है 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6। q2 कितना है -2 माइक्रो अपॉन 1 will become half m। m कितना है 10⁻⁴ v 10 स्क्वायर to -4. प्लस k q1 q2 बाय 0.5। 0.5 को लिख सकते हैं हाफ, ऐसे 2 ऊपर गया। यहां से आप क्या निकाल पाएंगे? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो विद मी प्लीज। Yes, sir. यस और नो? ओके अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर, those who want to take screenshot because I'll rub this so that second question थोड़ा बड़ा वाला है, that's why I'll do it। हेलो क्वेश्चन नंबर 22, I'll rub this, हाँ erase कर रहा हूँ मैं इसको इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले ध्यान देना, अभी सब लोग ने वर्क एनर्जी पावर एनर्जी किया है ना मेरे साथ में? हेलो Yes sir. कौन से दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? एवरीवन जस्ट बी विथ मी है नाउ। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, Yes sir. और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Is इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। Yeah, you final. याद रखना ये चीज को, इट इज द लाइफ ऑफ वर्क एनर्जी पावर। जिधर भी वर्क डन होगा ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आई ऑल विथ मी? Yes, sir. Minus of work done by conservative forces u final minus u initial, or work done by external agent will be u final minus u initial। क्या भाई याद है ना? इतना तो याद कर सकते हो ना एवरीवन? प्लीज जिसको नहीं आता है वो भी याद करो। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अच्छा इसको थोड़ा रीशफल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? U initial minus U final. कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, मैं ऐसे याद करता हूँ। ठीक है भाई, आपको जैसे याद करना है आप याद करो, बट अच्छा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, work done by external agent from initial to final will become u final minus u initial, and minus of work done by conservative force from initial point to final point will become u final minus u initial। Are you all understanding? Yes, sir. मतलब क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ? इसको ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम a to b will become potential energy at b minus potential energy at a, or I can also write this as work done by external agent from a to b will become ub minus ua। क्या भाई हेलो? आपको कुछ आए कि नहीं आए ये आपको आना चाहिए। यस और नो? सम पे आएंगे? सम पे आएंगे। चलो डू द सम। सम वाज एट 21st ना 22nd। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट चार्ज q1 -1 माइक्रो कूलम इज हेल्ड स्टेशनरी एट द ओरिजिन। q1 यहां पर है, ओरिजिन पर है। अ सेकंड पॉइंट चार्ज q मूव फ्रॉम 1,0,0। q2 यहां पर है 1,0,0, ओके 2 2,0,0. मतलब ये इनिशियल है। Yes sir. On the x-axis only it is going. On the x-axis straight. only, yeah, it is going straight only। Find the work done by electric force। Electric force मतलब कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। लो हेलो हेलो यार, एकदम टारगेट पे हिट करना है। कंजर्वेटिव फोर्स कितने किस्म के होते हैं? ग्रेविटेशन, यार बोलो। Sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से रहते हैं? The friction. विस्कोसिटी, ऑल विल, ओके। ये इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? Conservative force. बोलो बोलो कौन सा है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बिकम यू फाइनल लेवल माइनस यू इनिशियल लेवल। हेलो हेलो, और आई कैन से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बिकम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यस और नो? Yes. अच्छा इनिशियल लेवल ये है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल लेवल?
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? K Q1 Q2 by R. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल? K Q1 Q1 Q2 by by R. 1. But what is R at initial 1 point 1. from the origin? 1 1 1. बस कुछ नहीं करना है. Minus K Q1 Q2 by 2. ये done. अच्छा, Q1 and Q2 have to be substituted with Sine. साइन. आंसर आपको आ जाएगा टूल्स में, कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, आपको पूछेगा व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या करेंगे? इसका उल्टा. Yes, sir. तो माइनस माइनस साइन. भाई दुनिया में हम लोग ग्रेविटेशन में तो भी ऐसे ही करते हैं. अगर आप एक बॉडी को हाथ से ऊपर लेके जाओ, अपना हाथ ऊपर उठाओ, तो हु इज डूइंग पॉजिटिव वर्क? योर हैंड. हेलो, the external agent is doing positive work ना, and gravity is doing which work? Negative. Negative work. तो वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शुरू करते हैं. A point charge Q1 is held stationary at origin. चलो फटाफट. Q1 is held at origin 0,0. A second charge Q2 is placed at a point A. The electric potential energy at this point is given. मतलब A point पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है आपको. कितनी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा? -6.4 into 10⁻⁸ जूल. This is potential energy at A. When the second charge is moved to point B, the electric force does this much work. जब वो पॉइंट बी पर आ गया, पॉइंट बी पर Q2 आ गया, मतलब ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा? अरे बेटा ये कौन सा पॉइंट है? Initial. ये कौन सा पॉइंट है? Final. फाइनल. और कह रहा है इसको मूव कराने में किसने काम किया? अरे पढ़ो ये स्टेटमेंट जरा पढ़ो यार, ये लाइन पढ़ो. किसने काम किया? Q1. नो नो नो, क्या लिखा है यार? पढ़ना वो लाइन. Electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स. मतलब दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. Yes, sir. is 4.2 into 10⁻⁸. Vansh, are you understanding बेटा? Yes, sir. खाली लाइन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? मतलब मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाउ मच. कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमारे पास है. आर्यन आप फॉर्मूला बताओ फटाफट. Minus work done of conservative force is U final minus U initial. initial. चलो, minus of work done by, can I write work done by conservative force is initial minus final? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इनिशियल पॉइंट का नाम क्या है? ए. A, sir. फाइनल पॉइंट का नाम क्या है? बी. B. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डू यू हैव इट? 4.2 into 10⁻⁸. पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज -6.4 into 10⁻⁸. माइनस बी यू बी यहाँ से आपको मिल जाएगा. यस और नो? हेलो, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है. ओके, नॉट ओनली इन दिस सेक्शन, आगे आप जाके देखेंगे पोटेंशियल का सेक्शन में. ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के सेक्शन में ये फॉर्मूला इतना अच्छा फॉर्मूला है जिससे ऑल फॉर्मूलाज कैन बी डिराइव्ड. याद है मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी एक फॉर्मूला दिया था, बहुत अच्छा फॉर्मूला था. क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस, याद है, वर्क डन इज इक्वल टू Final kinetic energy. इससे पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व होता था. एवरी सेकंड सम इन वर्क एनर्जी थ्योरम वी यूज्ड टू सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला. अरे क्या बोल रहा हो यार मैं? समझ में आ रहा है आप Yes, लोगों sir. Yes, sir. को? ओके, तो चीजें आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 24. Is it possible to have an arrangement of 2 point charges separated by a finite distance such that the electric potential energy is same as 2 charges which are infinitely placed? Who will answer? चलो यार कोई दूसरा पर्सन आंसर को लो. लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं. I'm doing this last question. Ashna, are you there? Ashna? Hello. Nobody is replying. है? ठीक है, तो दूसरे को पूछते हैं. आर्या. Yes. हाँ बेटा, आप आंसर करो अभी. हाँ चलो. Yes. Can anyone tell me what is potential energy at infinity? अगर एक बॉडी इन्फिनिटी पर रहे तो उसके पास फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशन में तो पढ़ा है ना आर्या बेटा आपने, 0. कि अगर एक चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0 होता है. 0. बिकॉज फोर्स एट इन्फिनिटी 0 होता है. फोर्स तो लगेगा नहीं इन्फिनिटी मतलब उसके इन्फ्लुएंस के बाहर. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट.
अब ये क्वेश्चन जरा एक एक लाइन करके पढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग, इज इट पॉसिबल टू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r? आर्या बेटा इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. K Q1 Q2 by R. Q1 Q2 by R. अच्छा ये तो ठीक है एवरीवन. अच्छा आर्या बेटा इसको आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है? ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 का है ये के पोटेंशियल एनर्जी Q2 का है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा ना आपने, अब कब से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R माइनस G M1 M2 by R. कोई बता सकता है हाँ किसका है? सिस्टम. वेरी गुड. यस इट इज ऑफ द सिस्टम. किसके हिस्से में नहीं आएगा? इट इज ऑफ द होल फैमिली. ये याद रखना है सबको. हेलो पोटेंशियल एनर्जी किसके हिस्से में नहीं आता? इट इज शेयर्ड बिटवीन द होल फैमिली. मतलब Q1 नहीं बोल सकता इट इज माय हिस्सा, Q2 नहीं बोल सकता इट इज माय हिस्सा. इट इज ऑफ द होल फैमिली. ये याद रखना ये चीज. ओके मुझे बताना था, शायद वीडियो में नहीं बताया था मैं. ठीक है. अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि वीडियो की तरह सेम नहीं है बेटा ये सब चीजें. हेलो Yes, sir. अच्छा कैन एनीवन टेल मी, अगर Q1 यहाँ पर रखा है और Q2 इंफिनिटी पर है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 है. 0. क्या ये आंसर और ये आंसर कभी सेम हो सकता है? हेलो No, sir. अरे मेरा बच्चा, No. दिस इज एट फाइनाइट डिस्टेंस एंड दिस इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो यहाँ पर R इज इंफिनिटी ना, तो क्या PE1 एंड PE2 कभी सेम हो सकता है? No. No. नो. तो पहला आंसर क्या है? Is it possible to have an arrangement of 2 point charges separated by a finite distance? Finite distance मतलब R, such that electric potential and the arrangement is same as that of infinitely distant. No sir. अरे बोलो ना भैया, yes or no? So potential energy at finite distance will never be equal to potential energy at infinite distance. Hello. Yes, sir. Hello. अभी आगे बढ़ रहा है. Last question. What if there are 3 charges? क्या 3 चार्जेस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कभी 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, चाहे ए चार्ज नेगेटिव हो. हेलो यार 3 चार्ज सिस्टम है Q1 Q2 एंड Q3. सपोज ये Q है, ये Q है और ये कौन है? माइनस Q है. हेलो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में? वंश बताओ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? Q और माइनस Q. Minus K Q1 Q2 by R1. R1 इन दोनों के बीच में कितना रहेगा? plus K Q1 Q2 bar. नो माइनस ही है. हेलो माइनस K Q1 Q2 by R2. अच्छा इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? K Q1 K Q by R. Q by R3. क्या कभी ये आंसर 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है. अरे भाई माइनस साइन ऐसे डिजाइंड हो और R ऐसे डिजाइंड हो कि आंसर 0 आ जाए. हेलो Yes, sir. क्या हो सकता है ऐसे कि क्योंकि इसमें माइनस साइन भी है और प्लस साइन भी है, तो कैन आई से P1 plus P2 plus P3 can become equal to 0, which can also be matching with potential energy at infinity. So is it possible for 3 charges? Yes, it is possible for 3 charges, but for 2 charges it will never be possible. क्या हो रहा है? बहुत हार्ड है. हाँ हेलो भाई 2 चार्ज के लिए कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं रहेगा. 3 चार्ज 4 चार्ज 5 चार्ज हेक्सागन पेंटागन कुछ भी हो उसके लिए पॉसिबल होगा, बिकॉज माइनस चार्ज और डिस्टेंस ऐसे अरेंजमेंट जाएगा ताकि 0 आ जाए. कुछ डाउट है इसमें? No, sir. We close down for today. Hello. Yes, sir. Next time I'll start with potential. Okay. Yes, More sir. 3-4 exercises are left. So I hope everyone okay will get the clarity of electrostats. इसके बाद में हम लोग mixed questions of NEET and JEE शुरू करेंगे. Okay. Yes, चलो sir. thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.